हिंदुइज्म ले लो या आप बुद्धिज्म ले लो या कोई भी धर्म को आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि भाई माय रिलीजन इज नॉट रियली अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हम भारतीय संस्कृति में देखते हैं कि नदी की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, मारुति पुत्र हनुमान की पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम वृक्ष की रक्षा करते हैं? क्या हम नदी की रक्षा करते हैं? क्या हम पवन की रक्षा करते हैं? तो हमारा जो ये प्रयोग है, ये प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है कि जहां हमारी जो भी संस्कृति है, चाहे वो जैन हो या हिंदू संस्कृति हो, उसके अंदर जो एनवायरमेंटल रिलेटेड हमारी जो बातें हैं उसके ऊपर हम गौर करें, क्योंकि दिस सेंचुरी इज गोइंग टू बी अ सेंचुरी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इस उद्देश्य से हमने इस काम को शुरू किया है। छोटी सी शुरुआत की थी, आज काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज भी मुझे जो लोग सुन रहे हैं उससे मेरे एक नम्र निवेदन है, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। हमने एक शुरू तो किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि काफी लोग हमारे साथ जुड़ जाए। तो जो व्यक्ति हमारे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं in this continuous series which we are doing on every Sunday of first Sunday of every month, तो आप सबको फिर से नम्र निवेदन है कि आप संगीता जी, डिम्पल या तो हमारी जो भी टीम है उसका कांटेक्ट करके प्लीज जॉइन अस, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी rather than just be spectator or the listeners. Thank you very much. Over to Dimple. I think it's Vishal, you are taking over immediately, or anybody else? No, I would request Nilesh Bhai to introduce Vishal. Okay. Yeah. Nilesh Bhai, over to you. Jai Janendra Badhane. A very happy new year to all of you. A warm welcome to everyone present here for this session. I am Dr. Nilesh Dagli, and I am here to introduce the very knowledgeable person, Mr. Vishal Mehta. Vishal ji is an engineer by qualification and entrepreneur by the profession. He has completed his certificate and diploma course in Jainology from the Mumbai University. He is a co-founder of a research-based social sector startup organization. The focus of his work is researching on disruptive technologies for preventing environmental noise pollution, restoration of polluted water bodies, and fixing carbon emission through farming of selective mop crop, which can sequester massive amount of carbon in short cycle. As a common man, I understand that water as a substance composed of chemical elements, hydrogen and oxygen, and existing in a gaseous, liquid and solid state, as well as it is one of the essential compound of life. But Vishal ji has extensively done research work on modern scientists and thinkers on the subject of water, and through proactive interaction with them, he has explored lots of unknown dimension of water. Today, Vishal ji is going to connect all the dots and draw a completely different picture, which is far beyond the prevailing understanding of a common man. Today's session will truly transform our faith into a deeper understanding of this element of nature. It is an honor for us to gain from his knowledge and research of many years, and will definitely give us a new perspective. I now give the stage to Vishal Bhai and would request him to begin with the session. Thank you very much. Thank you very much, Nilesh Bhai. Good morning to all. Thank you very much for joining this session today. Let us start this session. Let me share my screen as I'm going to make a PowerPoint presentation right now. और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी ये सेशन अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, वो अगर हो सके कन्वीनियंट है तो
बड़े स्क्रीन पर स्विच ओवर करिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर अ फ्यू विजुअल व्हिच वुड बी more interesting to see on the larger screen. All right, so my screen is visible. Yeah, it is coming up, I think. Yes, Yes, visual, right. yes, it is visible. Yeah. All right, so आज हम देखेंगे हमारी पानी के बारे में अभी तक की जो समझ है, अब उसको हम एक एक अलग ही लेवल पे इसको लेके जाने वाले हैं ये आज के 1 घंटे के लेक्चर में। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। पानी क्या है? अगर ये सवाल हम एक मछली से पूछे तो वो क्या जवाब देगी? मछली ने कभी अपने आप को पानी से अलग करके मछली ने पानी को कभी देखा ही नहीं है। इट हैज ऑलवेज टेकन इट फॉर ग्रांटेड। उसके लिए ये प्रश्न ही एकदम इररिलेवेंट है कि भाई पानी पानी क्या है, मतलब पानी तो है, बस ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह है, ये कैसा प्रश्न है? मतलब पूरा जीवन पानी में रहने के बावजूद भी वो इस एक सिंपल सवाल का कभी वो सही तरीके से हमको जवाब नहीं दे पाएगी। एंड हमारे साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही है। हम जिस स्वरूप में पानी को देखते हैं, पानी उससे कई कई गुना कहीं ज्यादा, इट इज अ प्रोफाउंड इन नेचर। सो वी विल अंडरस्टैंड, वी विल अपग्रेड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सब्जेक्ट राइट नाउ। ऑलराइट, सो अगर हम कहते हैं कि भाई पानी एक लिविंग एंटिटी है, एक सजीव तत्व है, तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए? मतलब अगर सजीव है तो उसका कोई एक उसका फिजिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है? जैसे हमारी एक स्किन है, हड्डी है, मसल्स है, बोन्स है, या कुछ अलग प्रकार से है? अगर उसमें मतलब वो हाउ डज इट गैदर एनर्जी? हम जैसे मतलब वृक्ष है तो वो सूर्य प्रकाश लेकर के और हवा का कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपने लिए ऊर्जा का निर्माण करते हैं। दैट इज हाउ दे कीप देमसेल्फ अलाइव। तो पानी अपने आप को कैसे जीवंत रखता है, किस प्रकार से एनर्जी गैदर करता है, या अगर वो जीवंत है तो उसका जन्म कैसे हुआ, कैसे उसकी मृत्यु होती है? कुछ कुछ लक्षण उसके कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष तरीके से कुछ हमें दिखने चाहिए। हाउ इट इंटरेक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट, उसके आजू बाजू के पर्यावरण से वो किस प्रकार से वो इंटरेक्ट करता है। तो इसमें से अगर हमें कुछ लक्षण अगर मिलते हैं, तब जाकर के हम एक ऐसा एक कहीं हम ऐसा इशारा कर सकते हैं कि भाई इसमें जीव तत्व होने के कुछ लक्षण दिख रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पर आज कोई एक ऐसी कंक्लूसिव क्लेम पेश नहीं करने वाले। This fact, which we will study in this next 1 hour, it will lead us to believe that water seems to be that living entity. All right. तो हम अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं पानी के उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक उसका जो बंधारण है, जो हम हमारी एक साधारण समझ है कि एक ऑक्सीजन का एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम, ये एक उसका बंधारण हो गया। बट इसके अलावा और क्या है, इस विषय में एक वैज्ञानिक हुए थे पिछले लगभग 30-40 साल पहले, जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर मसारू इमोटो फ्रॉम जापान। अब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ स्टडी किया, और उन्होंने ये बताया कि पानी जो है वो अपना असली स्वभाव जो है ना, वो जब बर्फ होकर के एक फ्रोजन फॉर्म में जब आ जाता है और एक स्फटिक के जैसा वो जब एक दिखने लगता है, आइस क्रिस्टल, उस वक्त वो अपना असली स्वभाव प्रदर्शित करता है। देखते हैं इसके, उन्होंने इस सब्जेक्ट पे फिर कुछ रिसर्च किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले हम वो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। इनकी एक किताब है जिसमें उसके सारे एक्सपेरिमेंट की पूरी समरी है, दैट इज हिडन मैसेजेस इन वाटर। उन्होंने कहा कि अगर पानी को आप वर्ड्स, एक्शन, विचार, एक ध्वनि, साउंड, या इवन कोई पिक्चर्स, या आप कुछ भी ना कहे, एक सिंपली एक इंटेंशन आपका एक्सपोज करे, एक्सप्रेस करे। एक पानी का ग्लास है और उसके सामने आप कुछ भी एक शब्द बोले कि भाई थैंक यू, आई लव यू, यू आर ब्यूटीफुल, या आपने पानी के ग्लास पे एक स्टिकर लगा दिया जिसपे लिखा है लव, ग्रेटिट्यूड, ऐसे कोई भी एक पॉजिटिव, एक वाइब्रेशन क्रिएट करने वाले एक शब्द ऐसे लगा दिए, और पानी में देखा कि भाई इस प्रकार की एक बढ़िया सी
ऐसी एक इमेज क्रिएट होकर के आती है। ये देख रहे हैं, ब्यूटीफुल, इट्स अ रिपीटिंग ज्योमेट्रिक पैटर्न। तो उनको लगा अरे ये तो बहुत बढ़िया है। फिर उन्होंने उल्टा प्रयोग किया। उन्होंने किया कि भाई अब पानी को कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन, एक नेगेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं। आई हेट यू, यू आर अगली, आप बहुत घटिया हो, आई विल किल यू, यू नो, इस टाइप के कुछ शब्दों का प्रयोग किया। तब देखा कि कोई ऐसी कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, इट इज वेरी डिस्टॉर्टेड, डिसफिगर्ड इमेज एक उसके अंदर आ रही है। ये उसने कैसे देखा, उन्होंने क्या किया कि ऐसे एक एक भावना उसको देकर के वो पानी को फ्रीज कर दिया, बर्फ बना दिया। फिर और वो बर्फ को फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और वहां पर इस प्रकार की उनको पैटर्न दिखने लगी। देखिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे एक उन्होंने प्रार्थना बोली, कोई एक मान लीजिए बुद्धिस्ट प्रार्थना, तो आफ्टर रिसाइटिंग दैट प्रेयर, दैट क्रिस्टल केम इनटू दिस पर्टिकुलर एरे, एक रिपीटिंग एक पैटर्न, एक ब्यूटीफुल इमेज बन के उभर के आई। जबकि वो उसके पहले ऐसा एक कोई रेगुलर शेप नहीं था, कुछ कोई उसका आकार नहीं था। जब उसने कहा थैंक यू या लव एंड अप्रिसिएशन, तब अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज, बट व्हेन ही सेड यू नो आई विल किल यू, तो इट इज वेरी डिस्टॉर्टेड इमेज। तो उनका ये कहना था कि भाई वाटर इज सेंसिटिव टू दिस वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज व्हिच इट हैज बीन एक्सपोज्ड टू, एंड इवन आप भले कुछ बोलो भी नहीं, एक खाली वहां ऐसी भावना भी व्यक्त करो एक अपने मन ही मन में, तो भी वो पानी इस प्रकार का शेप एक्चुअल में धारण कर लेता है, जो आप इसको एक्चुअल माइक्रोस्कोप के नीचे उसको आइस बना के फ्रीज करके आप देख सकते हो। ये तो खैर इसका ऑब्जर्वेशन था। इसके पीछे का रहस्य क्या है, व्हाट मेक्स दिस टाइप ऑफ इमेजेस, आइदर दिस और दिस, अच्छी या बुरी, पर इसके पीछे का क्या एक एक उसकी प्रॉपर्टी क्या है पानी की। तो उन्होंने, अच्छा उसके पहले और एक एक्सपेरिमेंट किया, वो भी हम देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, पानी को एक माइक्रोवेव में डाल दिया। माइक्रोवेव के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि इट इज वेरी डैमेजिंग हमारे हर किसी के लिए। पर उन्होंने क्या किया, दो सैंपल लिए पानी के, एक ग्लास में पानी लिया, उसके ऊपर उसने लेबल लगा दिया लव एंड ग्रेटिट्यूड, और दूसरा ग्लास जो था वो ऐसे ही सादा पानी था। दोनों को बारी बारी करके उसने माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख दिया, और फिर देखा कि भाई जिस पानी को उसने लव एंड ग्रेटिट्यूड वैसे स्टिकर लगाए थे, लेबल लगाए थे, उसमें तो एकदम बढ़िया से एक इमेज बन के बाहर आई, एक कंप्लीट क्रिस्टल बन के बाहर आया। लेकिन जहां वो सादा पानी था वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो उल्टा एकदम से डिस्टॉर्ट हो गया, पूरा डिफॉर्म हो गया। मतलब इसका ये कंक्लूजन हुआ कि भाई ही मेड द वाटर इम्यून इवन टू द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दैट माइक्रोवेव ओवन। और मतलब इसका एक एक कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई अब हमारा शरीर पूरा पानी से बना पड़ा है, अगर हम हमारे अंदर भी इस प्रकार की लव एंड ग्रेटिट्यूड की भावना को हम लेके आते हैं, तो वी ऑल्सो मेक आवर बॉडी इम्यून टू दिस टाइप ऑफ डैमेजिंग इफेक्ट। और हम भी वही इस प्रकार के एक वी बिकम दैट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑलराइट, सो नाउ वी गो टू दैट अदर पार्ट कि भाई ये जो ऑब्जर्वेशंस है, इसके पीछे का एक्चुअल रहस्य क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है जो इस प्रकार से अपने क्रिस्टल्स फॉर्म करता है, उसको अलाइन करता है। ही अंडरस्टूड, उसने देखा कि पानी जो है उसके अंदर एक एक वो जो स्फटिक बनते हैं, जो हमने अभी वो इमेज देखी ना, तो वो जो स्फटिक बनते हैं वो स्फटिक का प्रकार क्या है। स्फटिक यानी क्या हो गया, इट इज द सेम मिनरल अरेंज्ड इनटू अ पर्टिकुलर रिपीटेड ज्योमेट्रिक पैटर्न, एक एक ऑर्गेनाइज उसका एक आप उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसके जो परमाणु एक ऑर्डर में अगर सेट हो जाए, तब वही मिनरल वो क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोल एंड डायमंड, दोनों फंडामेंटली तो एक सिंगल कार्बन एलिमेंट ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रिमेंडस प्रेशर एंड हीट इनटू द डायमंड माइंस, जो उसके कार्बन एटम्स है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट हो जाते हैं, एक रिपीटिंग ज्योमेट्रिक पैटर्न अंदर फॉर्म करते हैं। उसी कारण वो भले वो सेम कार्बन एलिमेंट ही है, बट it becomes, instead of coal it becomes, it turns into diamond.
एंड उसकी एक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक पूरी तैयार हो गई। अब देखिए, जैसे ये एक क्वार्ट्ज के पत्थर है और क्वार्ट्ज के क्रिस्टल है, हमारी घड़ी के अंदर ये क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है हमारे टाइम को मेजर करने के लिए। तो उसमें भी यही डिफरेंस है, इट इज द सेम मिनरल, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही है, चाहे वो क्वार्ट्ज ये पत्थर ले लो या उसके क्रिस्टल ले लो, बेसिकली केमिकली इट इज द सेम कंपोजिशन। ऑलराइट, सो अब ये जो हमारी एक साधारण समझ है कि पानी का जो अपना स्ट्रक्चर है, इंटर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विद इन दी वाटर मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन एटम इस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे जाते हैं। ये हमें एक 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में सिखाया जाता है, ठीक है। बट थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। जैसे ये स्टीम हो गई, अब इसमें सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस प्रकार से वो बंधा है, वो उसकी जो जो स्वरूप है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है, वो साधारण पानी में तो इसी प्रकार का है, कोई पर्टिकुलर एक एक पैटर्न नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बट व्हेन यू रिसाइट एनी प्रेयर और आप पानी को कोई एक भावना से प्रभावित करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो, तब उसमें इस प्रकार की एक ज्योमेट्री एक तैयार हो जाती है। इट कैन बी दैट्स ट्राइंगल, हेक्सागन, स्क्वायर, मतलब कोई भी प्रकार की हो, बट देन इट इज अ रिपीटिंग पैटर्न, एक मोटिफ बन गया। और जो हमने एक पिक्चर देखा था पहले, एक पर्टिकुलर डायमंड शेप या कोई भी ऐसा शेप, वो इसमें से धीरे धीरे वो इवॉल्व होता है। सो ये उसने पाया कि ये दिस इज इन बिटवीन स्टेज बिटवीन दैट सॉलिड क्रिस्टल and the flowable ordinary liquid, so he called it a liquid crystalline structure which is responsible for that that pattern, that arrangement of वो जो आकृति जो निकल के आती है, उसके पीछे का रहस्य है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस वाटर। ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार की इमेज जो डेवलप होती है, इवॉल्व होती है, वो उसके कारण है। एंड अब ये जो लिक्विड क्रिस्टल है, इफ वी हैव टू ड्रॉ पैरेलल, इट इज द सेम लिक्विड क्रिस्टल विच इज देयर इन अवर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। हमारे पास जो भी आज मोबाइल स्क्रीन है, टेलीविजन स्क्रीन है, उसके पीछे इसी प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल्स है, एलसीडी, वी कॉल इट एलसीडी। आप उसको इलेक्ट्रिक पल्स देते हैं तो वो प्रकाशित हो जाते हैं, वो एक चित्र का निर्माण करते हैं हमारे स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे या टेलीविजन स्क्रीन पे। सिर्फ सेम उसी प्रकार से ये पानी के अंदर भी जो ये लिक्विड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो ऐसे चित्र, ऐसी आकृति का निर्माण कर देता है। एंड दे आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट एट ट्रांसफरिंग एनर्जी, ट्रांसफरिंग दिस सिग्नल। इट प्रोवाइड्स दैट चैनल फॉर कम्युनिकेशन, एक पाथवे वो एस्टैब्लिश करता है। एंड वी विल फर्दर एक्सप्लोर इट, that this is the structure which is responsible for the storage of information and information transfer into the water। एक पानी एक अपने आप में हार्ड डिस्क के जैसे बिहेव करता है, आप उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो हार्ड डिस्क को। ऑलराइट, पहले इसको और समझते हैं जरा। ये जो उसकी प्रॉपर्टी है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है, वो उसको उसकी पानी की प्रॉपर्टी को ड्रास्टिकली ऑल्टर कर देता है। नाउ वाटर कैन एम्प्लीफाई एनर्जी, इट कैन ट्रांसड्यूस एनर्जी, इट कैन प्रोसेस द एनर्जी। एम्प्लीफाई एनर्जी मतलब क्या हुआ, जैसे क्रिस्टल्स हम उसका उपयोग करते हैं रेडियो में, टेलीविजन में, लेजर में। रेडियो मतलब मैं यहाँ अगर बोल रहा हूँ तो कई डिस्टेंस दूर सेम इंटेंसिटी के साथ पहले मेरी आवाज लाइट कैरी कलर से फॉरवर्ड ही करती है। लाइन्स आएंगी, फिर डार्क वो बाजू ही आएंगी और पानी से मौजूद। सो एक नोबेल लॉरेट हो गए थे हंगेरियन बायोकेमिस्ट एल्बर्ट सेंट यॉर्गी। व्हाट ही सेड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ complexity, that if a great number of atoms can be arranged in a regularity in close proximity, as it happens in crystal lattice, then that single valency electron ceases to belong to one or two atoms and belongs to the whole system. Then a great number of molecules may join to form energy continua, along with energy may travel. All right, so ये इसको एक एनर्जी को एम्पलीफाई करने की क्षमता देता है। एक हमारे पास जैसे ट्रांसफार्मर होता है,
आपने उसको 10 वोल्ट का करंट दिया तो वो उसको 120 या 240 वोल्ट में उसको एम्पलीफाई कर सकता है। तो ये क्षमता अब पानी में आ गई बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। सेकंड इज ट्रांसड्यूसर। इट कैन टर्न मैकेनिकल प्रेशर इनटू इलेक्ट्रिक करंट एंड वाइस वर्सा। हमारी घड़ी में जैसे वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, इट प्रोड्यूसेस दैट मैकेनिकल वाइब्रेशन। जब हम बैटरी से उसको करंट देते हैं तब वो टिक 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 करके वो एक वाइब्रेशन चालू हो जाती है और उसी से हमारा टाइम उसमें होता है। ये भी प्रॉपर्टी पानी के अंदर आ गई। दूसरी बात है, इट कैन प्रोसेस द एनर्जी। इट इज लाइक अ सेमीकंडक्टर। ये एक जेम्स ऑशमैन करके, अगेन ही वाज अ साइंटिस्ट, उसने, इनकी एक बहुत बढ़िया पुस्तक है एनर्जी मेडिसिन। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो सेमीकंडक्टर वाली जो प्रॉपर्टी है पानी के अंदर, वो पानी को क्या क्या कैपेबिलिटी देती है वो देखिए। इट हैज द कैपेसिटी टू डिटेक्ट, स्विच, स्टोर, मॉड्यूलेट, फिल्टर, रेक्टिफाई एंड एम्पलीफाई एनर्जी। पानी को मतलब वो एनर्जी को उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसको सेंस कर सकता है, उसके स्वरूप को बदल सकता है, एनर्जी को स्टोर कर सकता है, एनर्जी की इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकता है, एनर्जी को फिल्टर कर सकता है, रेक्टिफाई यानी एसी करंट से डीसी, डीसी से एसी करंट, और एम्पलीफिकेशन। तो ये सारी काबिलियत, ये सारी कैपेसिटी अब वो पानी के अंदर आ गई बिकॉज ऑफ इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जो होल्ड करता है, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो बंधन है, it is this hydrogen bond. We call it as a hydro, it is that intermolecular force, not that intramolecular force. ये दोनों तो जो एलिमेंट, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन तो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, लेकिन पानी का एक अणु और ये दूसरा अणु, वो एक जो बंधन से बंधा है उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप पानी को, अगर आप एनर्जी देते हैं, मान लीजिए पानी को गर्म कर दिया आपने, तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा एंड ईच मॉलिक्यूल विल सेपरेट, वो अलग अलग हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूल, ये जो बंधन है, ये कभी नहीं टूटेगा। इसके लिए आपको बहुत हाई लेवल पे एनर्जी अंदर उसको देनी पड़ेगी, ये आसान नहीं है। पर ये वीक बॉन्ड है, ये तुरंत टूट जाता है। ठीक है। सो दिस इज द बॉन्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ geometric repeating pattern into that water which Masaru Emoto observed under that microscope। एक पानी को बर्फ करने के बाद पानी माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो फिर उसको इस प्रकार का जो ऑब्जर्वेशन मिला, उसके पीछे का ये एक, दिस इज अ फोर्स। जैसे मैंने कहा, आप पानी को अगर गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं 100 डिग्री पे, तो उसके सारे जो अणु है ना, उसके बीच का जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो टूट गया। अब वो अलग अलग इंडिविजुअल हो गए एंड इट इज कंप्लीटली डिसमेंटल्ड। And this boiling only breaks that intermolecular force, not that वो उसके जो इंट्रामोलिकुलर जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो उसको कभी नहीं तोड़ सकते। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज हम देख लेते हैं बिफोर वी कम टू द अदर एट्रीब्यूट ऑफ द वाटर। ये हमारा आज का जो MRI मशीन है, ठीक है, जिसको डॉक्टर रेमंड डेमेडियन ने लेट 70s में इन्वेंट किया था। तो वो क्या करता है, वो एसेंशियली इट स्कैन्स दी वाटर इनटू दी वाटर, सॉरी वाटर इनटू अवर ह्यूमन बॉडी। जब आदमी MRI मशीन के अंदर जाता है तो उसके अंदर के पानी को, शरीर के हर एक भाग में बसे हुए पानी को वो स्कैन करता है। पानी की क्वांटिटी, क्वालिटी, उसका लोकेशन, ये उसका एक पूरा डिटेल्ड मैप बना करके उसकी इमेज हमारे सामने रख देता है। और क्योंकि हमारा पूरा शरीर लगभग 70% वाटर से बना है, तो उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। जहां पर वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं मिलता, मतलब कि वो अनहेल्दी सेल है। जब आदमी को कैंसर या पार्किंसन ऐसी कोई बीमारी हो जाती है शरीर के कोई भाग में, तो वहां पर उसको फिर उस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं मिलता, वो क्रिस्टलाइन स्टेट वो डिसमेंटल हो चुका है। जबकि हेल्दी जो सेल है, जो शरीर एकदम परफेक्ट है, वहां उसको परफेक्ट वो सेल मिलते हैं, तो वो वहां पे कोई बीमारी नहीं है। So essentially MRI is working on this theory of molecular organization of the water. All right.
So now we come over to the other aspect of the water, the other attribute of the water, which is अब पानी में वो ऊर्जा कहाँ से आती है, ठीक है. सो यहाँ पर एक और एक साइंटिस्ट है और एक रिसर्चर है, नी वॉन हो. उसने इसके ऊपर एक काफी रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि भाई व्हाट इज द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ लाइफ. आप कोई चीज जीवंत है या मृत है, लिविंग और डेड, उसकी बेसिक परिभाषा क्या है. और उसने बताया कि भाई लाइफ इज नथिंग बट the ability to maintain that liquid crystalline state of the water. हर एक जीव के अंदर पानी है, चाहे कोई भी जीव हो, मनुष्य हो या पशु पक्षी या वेजिटेबल फ्रूट्स वृक्ष हो, जब तक वो जीव के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो अपने शरीर के पानी का वो क्रिस्टलाइन स्टेट को मेंटेन कर सकता है, तब तक वो जीवित है. जिस दिन वो एबिलिटी खत्म हो गई तब वो पानी है लेकिन वो शरीर वो मृत हो गया. तो बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी किताब है. we will go into the other aspect and we will see. एक ऑस्ट्रियन थिंकर फॉरेस्टर पिछले सेंचुरी में हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जिसका नाम था विक्टर शावबर्गर. इन्होंने ये सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा काम किया है और उन्होंने कुछ हमें ओरिजिनल थिंकिंग प्रोवाइड करी है ये बारे में कि पानी ऊर्जा कहाँ से ग्रहण करता है, हाउ इट गैदर्स दैट लाइफ फोर्स व्हिच कीप्स इट अलाइव, ठीक है. और उसका उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन बताया कि वो जो है दैट इज कम बिकॉज ऑफ दैट स्पाइरल मूवमेंट ऑफ द वाटर. स्पाइरल मूवमेंट को हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं. देखिए, उन्होंने कहा कि देयर आर टू एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर वाटर टू मेंटेन दैट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. एक तो ये स्पिनिंग मूवमेंट जो है वो है इस प्रकार की. आप देखिए विश्व में, ब्रह्मांड में ये मूवमेंट आपको हर जगह दिखाई देगी. आपका डीएनए हेलिक्स है, इट हैज गॉट दैट स्पाइरल शेप. इवन the electron spinning around the nucleus, everywhere this type of vortex, turning inward, एक circling movement, ये जो है ये जब भी कोई क्रिएटिव प्रोसेस है उसके साथ ये मूवमेंट अचूक वहां पर आपको दिखने मिलेगी. एंड दैट इज हाउ that this movement initiates that gathering of that energy, life force. ये विक्टर शावबर्गर ने ये एक ऑब्जर्वेशन प्रस्तुत किया. और दूसरा उन्होंने कहा कि इट इज द सेकंड नेसेसरी एलिमेंट फॉर जनरेटिंग दैट लाइफ फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि हर जगह आप देखेंगे, जैसे मनुष्य के हृदय में है, पूरे पृथ्वी में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. तो ये दो चीज, जब ये स्पाइरलिंग मूवमेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब कंबाइन हो जाता है, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग दैट लाइफ फोर्स इनटू द वाटर. आप देखिए पानी का जो प्रवाह होता है वो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल सरफेस और अ वर्टिकल सरफेस. पानी हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही प्रवास करता है, कभी भी वो स्ट्रेट लाइन में शॉर्टकट में कभी ट्रैवल नहीं करता और एकदम पूरी फ्रीडम से वो चलता है, ठीक है. अब इसमें आप गौर करें कि जब एक नदी का प्रवाह है, वो प्रवाह में बीच में पत्थर आ गया, कोई सेडिमेंट आ गया, तब वो पानी एक इनवर्ड ऐसे कर्ल टर्न लेता है. इट फॉर्म्स दैट स्पाइरल टर्निंग इनसाइड, एंड विथ ईच बैंड ये स्पाइरल भी जो है अपनी डायरेक्शन भी रिवर्स करता है. मतलब पानी सिर्फ ऐसा लेफ्ट राइट टर्न नहीं करता, पानी ऐसा अपसाइड डाउन, अगेन डायरेक्शन चेंज, डाउन साइड अप, इस प्रकार से मूवमेंट करते हुए ही हमेशा आगे बढ़ता है. एंड this is the way in which water gathers that energy in its journey. यहाँ पर पानी में वो ऊर्जा का निर्माण होता है और वहीं पर उसको वो एक लिविंग एंटिटी का एक स्वरूप उसको मिलता है. ये विक्टर शावबर्गर का ऑब्जर्वेशन था. अब देखिए, दिस इज ओशन वेव.
इट कर्ल्स इनसाइड। उसकी जो 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 समुंदर की लहरें है, ये कभी अगेन वो भी स्ट्रेट लाइन में आगे नहीं बढ़ती है, एक एरोप्लेन की तरह नहीं चलती है, वो अंदर टर्न मारते फिर आगे चलती है, फिर टर्न मारती है। दिस vortex turning inside is extremely powerful force, and this is the force which is responsible for that molecular reorganization। जो हमने देखा था ना, वो हेक्सागन पैटर्न जो बनती है पानी में, या एक रेगुलर शेप अंदर आता है, उसके लिए जो आपको फोर्स चाहिए, दैट कम्स बिकॉज ऑफ दिस टर्निंग इनवर्ड मोशन, एंड दैट मेक्स वाटर ऑर्गेनाइज, एंड वो मॉलिक्यूल अंदर टाइटली एकदम से सेट हो जाते हैं। स्पिनिंग कीप्स एनर्जी फोकस्ड इनवर्ड नॉट आउटवर्ड। ठीक है, ऊर्जा को वो अंदर पानी अपने आप को जैसे समेट रहा है। ओके, एंड it creates that efficient geometry inside for that liquid crystal structure। अब आप यहाँ पर एक try to draw parallel, एक घटना आपको बताता हूँ। जैसे भाई हमने देखा, हम कहते हैं ना बहुत बार कि भाई कोई व्यक्ति, इन्होंने बहुत दुनिया देखी है, बहुत इन्होंने परिभ्रमण किया है, बहुत प्रवास किया है बाहर, और ही इज वेरी एनलाइटेंड, मतलब बहुत उसको ज्ञान है, वो बहुत अनुभवी है, क्योंकि उसने बहुत बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस किया है। लेकिन हमारे जो तीर्थंकर महावीर या बुद्ध है, उन्होंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? उन्होंने कोई विश्व का परिभ्रमण नहीं किया, कोई प्रवास नहीं किया, वो तो एक जगह जंगल में पेड़ के नीचे आके स्थिर हो गए। दे वेंट इनवर्ड, एंड दैट इज हाउ दे प्रोड्यूस्ड दैट एनलाइटनमेंट। वो जो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ था, वो अंदर से प्रकट हुआ था। सो कैन यू ड्रॉ एनी पैरेलल विद दिस कर्लिंग मोशन ऑफ द वाटर, एंड व्हाट द वे हर तीर्थंकर्स, बुद्ध ने जिस प्रकार से आत्मज्ञान प्रकट किया, ट्राई टू ड्रॉ दैट पैरेलल एंड यू विल गेट सम इंसाइट। आगे बढ़ते हैं। So this is the way nature gathers energy and brings life to the water. All right. अब आज क्या होता है? How water comes to us through this pressurized pipeline. सीधे रास्ते पानी आता है हमारे पास। So इस प्रकार तो जब भी पानी हमारे पास आता है, it is entirely stripped off with its that life force। ये जो विक्टर शावबर्गर का कहना था कि इस प्रकार से तो पानी कंप्लीटली डेड होकर के हमारे पास आता है। दिस इज नॉट द वे इट इज सपोज टू ट्रैवल। ये हमने जो देखा ना, एक होता है इनवर्ड मोशन और एक होता है आउटवर्ड, गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जो अंदर के तरफ चलते हैं, जो जिस मोशन, उसको कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, and the motion which goes outward, it is called centrifugal motion। what happens with the water, जब पानी अपने आप को अंदर समेटता है, that is called as implosion। it is exactly opposite of explosion। एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ऊर्जा पूरी बाहर बिखर जाती है, आउटवर्ड एक्सपांडिंग मोशन है वो, जबकि यहाँ वो पूरी एनर्जी को अंदर समेट रही है। You understand? आप उसको एक समझने की कोशिश करिए। It is gathering, it is pooling, it is organizing energy, and whereas this explosive is deconstructive in nature। Nature उसको decomposition में ये एनर्जी को यूज करता है। This explosion creates lot of heat and friction, whereas this is friction reducing। it is very constructive in nature। inward जो मोशन है, implosion जो है। ऑलराइट, तो ये दोनों का डिफरेंस है। और एक उसका मजेदार ऑब्जर्वेशन था अबाउट दी वाटर साइकिल। हमको जो साधारण वाटर साइकिल जो समझ में आती है कि भाई पानी तालाब से उसका बाष्पीभवन होकर के वो बादल बन जाते हैं, बादल से फिर बारिश आती है, बारिश का पानी फिर झरने में होते हुए तालाब में या समुद्र में आता है, और फिर ये साइकिल चलती है। विक्टर शावबर्गर said that this is incomplete water cycle। The complete water cycle happens only when water completes that underground part of its journey।
पानी, बारिश का पानी जब गिरता है समुद्र जमीन पे, देन इट हैज टू सिप इनटू दी अर्थ, अंदर सरफेस के अंदर जाना चाहिए, वहां उसको ट्रैवल करना चाहिए, और फिर वहां से वाटर शुड इमर्ज आउट ऑफ दैट अर्थ, तब जाकर के वो साइकिल पूरी होती है। एंड दैट इज व्हेन इट इज कंप्लीट, तभी जाकर के उसका पूरा जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो ओरिएंटेशन है, वो एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में वो बन जाता है। एंड अगर आप जैसे अब बोरवेल खोद करके पानी जमीन में से निकालते हैं हम, बहुत जगह पे, तो दैट इज व्हाट वाटर दैट वी ड्रॉ, इट इज इमेच्योर। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने एक प्रेग्नेंट लेडी को छठे या सातवें महीने में ही उसको प्रीमेच्योर डिलीवरी कर दी। इट इज नॉट राइट एट दैट स्टेज। पानी को जमीन में से जब अपने आप अंदर से निकल के आता है लाइक अ स्प्रिंग वाटर, that is the time when it's that formation, crystal liquid crystalline state is visible, तब वो जाकर के उसमें वो रूपांतर होता है। और ये जो बात है, ये तो आप मतलब जिस किसी ने कभी, जिसको मौका मिला है ऐसे कोई इस प्रकार के पानी को एक्सपीरियंस करने का, जो जमीन से निकला हुआ पानी, जो आप देखिए मुंबई के आसपास में एक वज्रेश्वरी नाम की जगह है जहाँ पानी के कुंड है, पानी जमीन के अंदर से सीधा निकल रहा है। इट इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम एनी रिवर या झरने में से ऊपर से नहीं आ रहा, अंदर से निकला हुआ पानी है, और वो आपकी तरह तरह की बीमारियों को ठीक कर देता है, क्योंकि इट हैज इंटरेक्टेड विद दैट लॉट ऑफ मिनरल्स इनसाइड, और अंदर के गैसेस, अंदर की जर्नी वो पूरी करके निकला है। तो वो एक अलग प्रकार की उसमें ऊर्जा अब उसमें आ चुकी है, एंड दैट इज हाउ दैट लाइफ फोर्स इज बिल्ट इनटू दैट। एक मजेदार बात है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे जो पुराने जमाने में इस प्रकार के मिट्टी के एक बड़े से क्या कहते हैं घड़े ऐसे हुआ करते थे, और ये सिर्फ पानी स्टोर करने के लिए नहीं होते थे, इवन अनाज भी इसमें रखते थे। अब ऐसा शेप क्यों बनाया हमने? ये डिजाइन स्ट्रक्चरली तो ये गलत डिजाइन है। बॉटम में वीक है, छोटा सा बेस है, और ऊपर चलते हुए ये मोटा हो गया, यहाँ पे वजन ज्यादा है। फिर भी हमारे पूर्वजों ने ऐसा शेप क्यों लिया, एलिप्टिकल शेप? उसका कारण है, ये जो एलिप्टिकल शेप है, ये नेचुरली इस प्रकार के वोर्टेक्स को, इनवर्ड मोशन को वो सपोर्ट करता है। आप पानी जब उसमें घड़े में इस प्रकार से भर के रखते हो, तब वो स्पाइरल अंदर अपने आप वो एक करंट अंदर से इस प्रकार से जनरेट होते ही रहता है, एंड इट मेंटेन्स दैट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दैट एनर्जेटिक मूवमेंट इनसाइड, वो चलते रहती है। यू कैनॉट सी विद दी नेकेड आई, मतलब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, बट दिस शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने, विक्टर शाहबर्गर ने कहा कि ये जो एलिप्टिकल शेप है, एग शेप, वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि जिसके कारण ये एनर्जी उसके अंदर एक सर्कुलेट होते रहती है, उसको स्टैग्नेंट नहीं होने देता। आप देखिए मुर्गी का अंडा हो या कबूतर का हो या किसी का भी एग, इट इज ऑलवेज दिस टाइप ऑफ एलिप्टिकल इन शेप। कुदरत ने उसको सिलेंडर नहीं बनाया, उसको सब हर एक अंडे को कुदरत ने ऐसा एलिप्टिकल शेप दिया है, क्योंकि उसके अंदर भी फ्लूइड है, उसके अंदर भी पानी है, तो उसके अंदर भी वो एनर्जी अंदर, एक फोर्स अंदर चलते रहना चाहिए। अब आज हम कंपेयर करें, हमारे जो ट्रेडिशनल वेसल्स थे, ये लोटा, हमने कभी ग्लास में पानी नहीं पिया। एंशिएंट टाइम में दिस वाज नॉट द केस, आई मीन ये इसी प्रकार से पानी पीते थे। आज क्या है, ऐसे सीधे ग्लास हो गए। हमारे पुराने जो कुंभार थे या जो ये प्रकार के लोहार थे, जो लोटा वगैरह वेसल बनाते थे, क्या उसको सीधा शेप बनाना नहीं आता था? वो तो और भी आसान है, एकदम इजी है। ऐसा एलिप्टिकल राउंड शेप, ऐसा कर्वेचर देना ऐसा कुंभार को, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इट टेक्स मोर स्किल। फिर भी वो लोग यही शेप बनाते थे। ऐसा सीधा सीधा ऐसे टांकिया या इस प्रकार के ग्लास कोई नहीं बनाता था पहले। सो डज इट हैव एनी पैरेलल विद दिस थियरी ऑफ विक्टर शाहबर्गर और नॉट? दैट वी नीड टू थिंक। ओके, सो नाउ हमने दो चीज देखी, एक तो वाटर का स्ट्रक्चर, दूसरी बात उसके अंदर ये जो लाइफ फोर्स जिस प्रकार से आता है आउट ऑफ दैट, ड्यू टू दैट स्पाइरल मूवमेंट, इनवर्ड इम्प्लोजन के कारण।
अब एक तीसरी जो अगत्य की चीज है वो हम देखते हैं कि अगर पानी एक लिविंग एंटिटी है तो वो संवेदना को कैसे, उस पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट से वो कैसे प्रभावित होता है, और उसके अंदर वो चीज को ग्रहण करने की क्षमता है या नहीं, उसके पास वो मन है या नहीं। मन यानी एक जरूरी नहीं है कि वो हमारे टाइप का वो एनालिटिक माइंड हो, बट फिर भी एक वेरी रूडिमेंट्री नेचर ऑफ माइंड, याद रखने की क्षमता है या नहीं। इस विषय में एक संशोधन हुआ, मतलब बहुत सारे संशोधन हुए, हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट वी विल सी दिस वन एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट। उसको 2008 में HIV वायरस की शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। ही वॉज ऑलरेडी अ वेरी डेकोरेटेड साइंटिस्ट इन 2011, क्योंकि 2008 में ऑलरेडी नोबेल प्राइज से वो सम्मानित हो चुका था। और 2011 में उन्होंने एक प्रयोग किया। पहले कोई वैज्ञानिक ऑलरेडी वाटर मेमोरी के ऊपर एक हाइपोथेसिस देके गए थे, उसी चीज को उसने आगे बढ़ाते हुए एक एक्चुअल प्रयोग किया, और उसने बताया कि वाटर कैन रिटेन द इंफॉर्मेशन बाय होल्डिंग द वाइब्रेटरी सिग्नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। ये उसने साबित करने के लिए एक DNA टेलीपोर्टेशन का एक एक्सपेरिमेंट किया। What is that DNA teleportation? You will understand. But this was the most astonishing discovery of the last century. फिर भी कहीं आप मेन स्ट्रीम मीडिया में, लिटरेचर में, कहीं पे भी इन्होंने इसको इतना हाईलाइट नहीं किया है। इट वाज सप्रेस्ड। ये DNA टेलीपोर्टेशन क्या था? मतलब इसने तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी, एकदम क्लियर कट, नो थियरी, स्ट्रेट प्रैक्टिकल, दैट वाटर कैन रिटेन दैट मेमोरी, वो पूरा साबित कर दिया। एकदम संक्षिप्त में देखेंगे ये एक्सपेरिमेंट को। पहले तो ये देखते हैं टेलीपोर्टेशन क्या है। टेलीपोर्टेशन मतलब एकदम ये एक साईफाई कॉन्सेप्ट है। साइंस फिक्शन में ये प्रकार के घटनाएं होती है कि एक पदार्थ, एक एक चीज एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एक्चुअल ट्रैवलिंग वहां से यहां से वहां पहुंच जाती है। मान लीजिए आपने एक डोमिनोज में पिज्जा ऑर्डर किया, डोमिनोज वाला कहता है 30 सेकंड में हम आपको आपके घर पे पिज्जा दे देंगे, बट नहीं, अब क्या होगा कि वो 30 मिनट नहीं, अगले 3 मिनट में ही आपको वो पिज्जा उसके किचन में बना है उसका फोटो निकालेगा, और वो उसकी जो डिजिटल फाइल है वो आपको, जैसे मान लीजिए कि भाई व्हाट्सएप पे भेज देगा। एंड यूजिंग दैट डिजिटल फाइल और इमेज या कोई भी वो प्रकार की फाइल है, उसको यूज करके आप वो पिज्जा को अगले 2 मिनट में आप आपके 3D प्रिंटर पे घर में जो आपके पास है, यू विल रीसिंथेसाइज दैट पिज्जा विद दैट सेम रेसिपी, वो सेम आधा मैदा अंदर आटा, उसकी सेम प्रिपरेशन, वही सेम गर्मी वाला गर्मा गर्म पिज्जा वो आप रिकंस्टिट्यूट करेंगे, एंड यू विल हैव इट विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। मतलब आप यहाँ बैठे हुए जापान की कोई रेस्टोरेंट से कोई चीज ऑर्डर कर सकते हो। ये एक साइंस फिक्शन, एक कल्पना वाली बात है। साइंस फिक्शन मूवी में या उसकी कोई नॉवेल में ऐसा बताया जाता है। ये साइंटिस्ट ने ये चीज एक्चुअल में करी। कैसे करी आगे देखते हैं। उसने PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज करके ये DNA सीक्वेंस, एक जेनेटिक मटेरियल जो होता है, उसको रिप्रोड्यूस किया। मतलब सरल शब्दों में कहे और अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भाई आज जो पूरा विश्व कोरोना से एक एक वी आर ऑल, हम एक पीड़ित है। यहाँ बैठे हुए मुंबई में या इंडिया में बैठे हुए उन्होंने कोरोना वायरस को विदाउट एक्चुअली ट्रैवलिंग टू USA, उन्होंने US में जाकर के उसका वो एक वहां उन्होंने उसका चेप लगा दिया। कोरोना वायरस विदाउट एक्चुअली ट्रैवलिंग टू US, सिर्फ आपने मुझे छींकते हुए देखा, आई एम ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद द कोरोना, और मेरी वो फोटो वहां US में किसी ने देख ली और वायरस उधर पहुंच गया। ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट उसने किया यूजिंग दिस PCR से भी आज लगभग इवन द लेमैन इज फैमिलियर। RT-PCR टेस्ट हम सब लोग जानते हैं कि अगर आपको कोरोना हुआ है तो क्या करते हैं, वो पैथोलॉजिस्ट आकर के आपके गले में से या नाक में से फ्लूइड निकाल के लेके जाते हैं और उसको चेक करते हैं कि उसमें वो कोरोना वायरस अंदर है कि नहीं। लेकिन उसके पहले वो आपके अंदर से जो वो थूक या अंदर से गले में से जो फ्लूइड निकला है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि
वो वायरस की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। मतलब आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ मॉलिक्यूल अगर है वाटर के, पानी के, तो उसमें वो वायरस इट इज नॉट इवन 0.001। तो आप उसको अंदर कितना भी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप हो वो उसमें देख नहीं सकते। what you need to do before you actually detect that virus is you need to multiply the quantity of that virus। आपको वो उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, आपको एक ये पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन के थ्रू उसको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर एक वायरस है तो आपको उसके करोड़ों वायरस वो आपके गले के थूक में वो आर्टिफिशियली पैदा करने होंगे, और उसके बाद जाकर के आप अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें कोरोना या तो है या नहीं है। अगर ओरिजिनल ही अगर उसमें होगा नहीं कोरोना या कोई भी वायरस, तब तो जैसे कुछ भी नहीं बनेगा। बट अगर एक भी सूक्ष्म उसका ट्रेस है तो मिलियंस ऑफ कॉपी विल बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस पीसीआर प्रोसेस। सो दिस इज अ प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिनका बैकग्राउंड है वो चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वायरस। अब इसका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट समझते हैं। उसने पानी के साथ क्या खेल खेला। उसने ये फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एक पानी का सैंपल लिया टेस्ट ट्यूब में। वहां पर उन्होंने, उस समय तो कोरोना नहीं था, उस समय तो एचआईवी था, तो एचआईवी वायरस पानी के अंदर एक बूंद के द्वारा इन्फ्यूज कर दिया। पूरा उसको बॉटल को शेक किया, पूरा अच्छे से घुल मिला दिया। अब उन्होंने बहुत बार डाइल्यूशन करते गए। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें उन्होंने ओरिजिनल ये सॉल्यूशन तैयार किया था, अब दूसरी एक टेस्ट ट्यूब ले ली और पहले टेस्ट ट्यूब में से सिर्फ एक बूंद निकाली और दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दी जिसमें कि सादा पानी था। मतलब अब यहाँ ऑलरेडी सिर्फ एक थोड़ा सा ही वो वायरस इन्फ्यूज किया था, दूसरे में आने की संभावना को बहुत ड्रास्टिकली कट कर दिया, क्योंकि वो तो अभी एक बूंद निकाल के डाइल्यूट किया है। ऐसा तीसरी बार किया, तीसरी बार भी एक सादे पानी की टेस्ट ट्यूब, और सेकेंड टाइम वाली जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें से एक बूंद निकाल के तीसरे में डाला। वापस वो संभावना और कम हो गई एकदम ड्रास्टिकली। ऐसा चौथी बार, पांचवी बार, 8-10 बार। मतलब लास्ट टाइम जो लास्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें तो वो ओरिजिनल वायरस के जो डीएनए, उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो रहने की संभावना ही लगभग मिट गई। उसके बावजूद भी जो लास्ट टेस्ट ट्यूब थी उसमें उसने देखा कि इट इज एमिटिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ठीक है, उसमें से मान लीजिए जैसे वो पानी की एक एक धड़कन एक शुरू हो गई है, उसमें से कुछ आवाज आ रही है, तो क्या इसकी आवाज इसकी धड़कन से मैच हो रही है एग्जैक्टली सेम? वो कैसे चेक करे? तो भाई दैट वाज हिज सेकंड स्टेप। सॉरी, बिफोर दैट इसने अपने आप को, मतलब ये एक्सपेरिमेंट को एक हर्डल क्रिएट किया। फर्स्ट स्टेप में तो उसने पानी को फिर भी फिजिकली कंटामिनेट किया था, सिर्फ भले एक एक बूंद डाल करके। लेकिन अब उसने क्या किया, अब उसने फिजिकली यहाँ से बूंद यहाँ पे यहाँ ट्रांसफर नहीं करी। अब उसने ये टेस्ट ट्यूब में जिधर एक सादा पानी भरा था उसको इसके बाजू में ही रख दिया। मतलब नो एक्चुअल कांटेक्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ, जस्ट प्रॉक्सिमिटी। दिस वाटर वाज एक्सपोज्ड टू दिस साउंड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से उसको एक्सपोज कर दिया। और उसने देखा 18 घंटे के बाद ये पानी एक्चुअली तो उसमें उसने कुछ मिलाया ही नहीं है, उसको कुछ भी मतलब फिजिकल तो कुछ उसमें है ही नहीं, फिर भी ये इट इज अगेन रिलीजिंग दैट सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो कि ओरिजिनल इसमें थे वही यहाँ पर भी आ गए हैं। अब उसने कहा भाई वो तो मैच तो करना चाहिए हमें कि ये ओरिजिनल के साथ है कि नहीं। अब वो कैसे देखे? अगेन दैट पीसीआर, उसको एम्पलीफाई कर दिया। एक जो आवाज इतनी छोटी थी, जैसे हम हमारे वो रेडियो, मतलब ऑडियो सिस्टम जो होती है म्यूजिक सिस्टम में कैसा एम्पलीफायर होता है, छोटे से आवाज को एकदम लाउड करते हैं, वो पीसीआर भी वैसा ही लाउड कर देता है सो दैट यू कैन एक्चुअली हियर दैट। तो उसमें उसने पाया कि जो डीएनए उसकी जो पैर है वो एग्जैक्टली ओरिजिनल डीएनए पैर के साथ मैच हो रही है, जरा भी उसमें फर्क नहीं है। इट वाज दैट 104 डीएनए पैर लेटर्स, वो बराबर से, वो जैसे एक फिंगरप्रिंट मैच करते हैं ना, वैसे बराबर फिंगरप्रिंट मैच हो रही है।
और ये एक्सपेरिमेंट उसने 22 बार किया, हर टाइम सेम रिजल्ट, लगभग 98% आइडेंटिकल डीएनए पे है। ये पानी जिसके अंदर फिजिकली कुछ मिलाया भी नहीं है, बस पानी ने वो सिग्नल को कैप्चर किया, वो इंफॉर्मेशन को अंदर रिटेन किया एंड इट रिप्रोड्यूस दैट सेम वाइब्रेशन, जो कि उसने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ये पीसीआर के थ्रू ये डीएनए को रीसिंथेसाइज किया। मैजिक डज नॉट एंड हियर, रियल टेलीपोर्टेशन अभी बाकी है। अब उसने क्या किया, जो फर्स्ट केस में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ये टेस्ट ट्यूब से निकल रहे थे, इसके आगे एक जैसे एक माइक्रोफोन लगा दिया, माइक फॉर रिकॉर्डिंग, एंड उसकी एक डिजिटल फाइल बना दी, एक जैसे हम MP3 फाइल बनाते हैं ना, म्यूजिक फाइल, वैसी फाइल बना दी। और उसने अपने कंप्यूटर में उसको वो MP3 फाइल को मान लीजिए कि वो स्टोर कर दिया अपनी एक लेबोरेटरी में, और फिर वो MP3 फाइल या जो भी एक डिजिटल फाइल थी उसको उसने अपने दूसरे लेबोरेटरी में ईमेल के थ्रू भेज दिया। ये लेबोरेटरी मान लीजिए लंदन में है, दूसरी लेबोरेटरी पेरिस में है। यहाँ पे उल्टा प्रयोग किया, वो डिजिटल फाइल म्यूजिक फाइल को उसने चलाया एक स्पीकर लगा के, उसके बाजू में पानी का ग्लास रख दिया और पानी को अगेन वही वाइब्रेशन से प्रभावित किया, और अगेन ही डिड दैट सेम पीसीआर टेस्ट टू रीसिंथेसाइज टू मल्टीप्लाई, उसको एम्पलीफाई कर दिया and he saw that it produces that same DNA pattern। मतलब अब यहाँ कोई डाउट एम्बिग्यूटी का प्रश्न ही नहीं बचता। इट रिप्रोड्यूस प्रिसाइजली द सेम एंड रिजल्ट, यानी एक्चुअल वायरस HIV वायरस जो उसने पानी में मिलाया था वो हजारों लाखों किलोमीटर दूर बिना एक्चुअल ट्रैवल किए वो ट्रैवल हो गया। वो कैसे हुआ, माध्यम क्या बना? इट इज दैट वाटर मेमोरी, पानी ने वो वाइब्रेशन को याद रख लिया, और जब भी वो वाइब्रेशन फिर से पैदा करी यहाँ पर दूसरे लेबोरेटरी में, तो इट प्रोड्यूस दैट सेम रिजल्ट एवरी टाइम, एंड दैट प्रूव्ड द हाइपोथेसिस ऑफ वाटर मेमोरी। ये चीज को अब हम कुछ प्रैक्टिकल जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उसके साथ हम थोड़ा जोड़ के थोड़ा वी ट्राई टू सी सम कोरिलेशन। देखिए, होम्योपैथी एक साइंस है, चिकित्सा पद्धति है। वो जो है वो एक यही डाइल्यूशन के प्रिंसिपल पे आधारित है। यहाँ पर वो मेडिसिन जो ओरिजिनल जो उसका टिंचर बनाते हैं उसको डायरेक्टली नहीं दिया जाता पेशेंट को, उसको कम से कम 5, 10, 20 या इवन 100 बार डाइल्यूट करते 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 दिया जाता है, और वो फाइनल जो डाइल्यूशन है उसमें तो एक्चुअल मेडिसिनल मॉलिक्यूल उसमें कुछ बचता ही नहीं है, मतलब वो पॉसिबिलिटी लगभग खत्म हो गई। फिर भी मेडिसिन तो काम करती है, मतलब वो किस चीज ने उसको ठीक किया? पेशेंट को एक्चुअल मेडिसिन तो लगभग गई ही नहीं है। इट इज द मेमोरी ऑफ दैट ओरिजिनल मेडिसिन which is responsible for reconstitution of that same medicine in that infused in that first stage। मतलब वो चीज को कहीं ना कहीं आप वो वाटर मेमोरी के साथ आप यू कैन ड्रॉ दैट पैरेलल। हमारी भारतीय एक ट्रेडिशन में एक कहावत है, मुहावरा है, गुजराती में कहते हैं, मतलब आप जब भी कोई प्रतिज्ञा लेते हैं, कोई संकल्प करते हैं ना, तो कहते हैं भाई पानी मुख, आज थी तू आ काम, मतलब आज से तू ये काम करेगा, आई टेक दिस ओथ। तो वो पानी मुख ऐसा क्यों कहते हैं, पानी हाथ में क्यों लेते हैं? बेसिकली वो पानी को आप प्रोग्राम करते हो, आपका जो संकल्प है वो पानी को आप बताते हो, और फिर वो पानी आप चाहे पी जाओ या अपने आप पे लगा दो वो पानी, तो आप खुद वो प्रोग्राम हो गए। इट हेल्प्स यू इन रिटेनिंग दैट संकल्प। हमारे यहाँ जैसे भगवान को अभिषेक करते हैं, वो पानी फिर हम आंख पे लगाते हैं, सर पे लगाते हैं या पी जाते हैं, मतलब वो जो वाइब्रेशन वहां आपने इंफ्यूज किए, जो डिवाइन वाइब्रेशन, वी वांट दैट वाइब्रेशन टू कम इनसाइड। मुहावरा कहता है भाई कोई अनुभवी व्यक्ति को इसने घाट घाट का पानी पिया है, तब ऐसा क्यों नहीं कहते कि भाई उसने घाट घाट का खाना खाया है? बोल सकते हैं ना, अर्थ तो सेम ही होता है ना कि भाई इसने यस ट्रैवल्ड अ लॉट, बट फिर भी कहते हैं इसने पानी पिया है। भाई क्रिश्चियनिटी में भी यही चीज है,
बैप्टाइजिंग जो एक उनकी सेरेमनी है, वहां पर भी वो फादर पानी छिड़कते हैं, इन द नेम ऑफ फादर, द सन, द होली स्पिरिट। हमारे यहाँ पे भी जैसे हम पानी पीने से पहले सुबह हम नवकारशी करते हैं, तो भाई 3 नवकार गिन करके पानी का ग्लास रखते हैं सामने और फिर वो पानी पीते हैं। ये सारी ट्रेडिशन के पीछे एक एक जो प्रिंसिपल है, दैट इज यू आर इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर इनटू अ वाटर। गर्भ संस्कार करते हैं। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है, यू आर बेसिकली प्रोग्रामिंग दी वाटर ऑफ दैट एम्ब्रियो, जो गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसका पानी जो है उसको आप प्रोग्राम कर रहे हो उस वक्त। और जब वो बच्चा छोटा होता है ना, इवन आफ्टर बर्थ, तब आप उसको बहुत आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। बट एज यू एज, जैसे उम्र बड़ी होती है, फिर पानी के अंदर का वो लिक्विड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो धीरे 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 डिसमेंटल हो जाता है। मृत्यु के समय तो वो एकदम से खत्म हो जाता है। और इसी कारण हम कहते हैं कि भाई बच्चा जब छोटा है ना, आप जिसको जैसा मोल्ड करना चाहो वो मोल्ड हो जाता है, बड़ा होने के बाद वो हो नहीं सकता। तो ऑल दिस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ये सारे मुहावरे हमको, ये जो थियरी है ये साइंटिस्टों ने जो डिस्कवर करी है उसके साथ कहीं ना कहीं वो कोरिलेट कर रही है। एंड लास्ट आई वुड एंड माय प्रेजेंटेशन विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इस विषय में हमारे तीर्थंकर महावीर ने क्या कहा। भगवान महावीर ने हमारे लिए कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, हमारे लिए कोई यूट्यूब वीडियो बना के नहीं छोड़ के गए। उसने हमारे लिए एकदम साफ सीधा सरल भाषा में कुछ 2-4 बातें कहकर गए। समझदार को इशारा काफी है। वाटर इज अ लिविंग एंटिटी, पानी अपने आप में एक जीव तत्व है। पानी के अंदर जीव है वो बात नहीं है, वो तो है ही, अंदर सूक्ष्म जीव है वो तो है ही है, बट पानी अपने आप में जीव है। उसके 7 लाख प्रकार है, एक नहीं 7 लाख प्रकार है। वो एक इंद्रिय वाला जीव है, 1 सेंस क्रीचर। आपको उसके प्रति भी सूक्ष्माति सूक्ष्म अहिंसा आपको उसके प्रति बरतनी है, ऐसा ही व्यवहार करना है। और जिसको हम कहते हैं जैना। और अगर आपको आपके जीवन की जरूरतों के लिए अगर पानी को यूज करना ही है, बिना पानी पिए हम जीवित नहीं रह सकते, या बिना हमें नहाना है, बहुत सारी जरूरतों के लिए पानी यूज करना ही है, तो हमेशा आप अचेत पानी का ही उपयोग करें। अब यहाँ पर बड़ी गड़बड़ है, समझ हमारी आधी अधूरी है, बहुत कंफ्यूजन वाली है। हम अचेत पानी का मतलब क्या समझते हैं? अचेत पानी मतलब हम सोचते हैं भाई पानी को उबाल लो, उसके अंदर सारे जीव है उसको उसकी एक साथ उसकी हत्या कर दो और फिर वो पानी को पी लो, मतलब एटलीस्ट अगले कुछ 5-6 घंटे तक उसमें नए जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। अब ये जो समझ है ना, ये दिस इज नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। अब वो वही सजीव और निर्जीव की बात होती, तब तो वो सचेत और अचेत बोलने की क्या जरूरत थी। वो बोल सकते थे कि पानी को आप निर्जीव करो, सजीव और निर्जीव करो, ऐसा शब्द नहीं यूज किया उन्होंने, यूज किया सचेत और अचेत। अचेत उसका अर्थ है उसके अंदर किसी का चित्त शामिल नहीं होना चाहिए, किसी के भाव शामिल नहीं होने चाहिए। जो भी पानी आप कंज्यूम करते हो वो आपको पता नहीं है कि वो कौन से रास्ते चल करके, कौन से नदी नाले, कौन से पाइपलाइन के थ्रू, कौन से नल के द्वारा आपके मुंह तक वो पहुंचा है। उसकी वो जर्नी में वो किस किस से वो प्रभावित हुआ है, और वो जो जो जिससे वो इन्फ्लुएंस हुआ है, वो चीज सबकॉन्शियसली वो आपको भी इन्फ्लुएंस कर रही है। आप एक तरफ मान लीजिए कि भाई एक एक लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी, गर्भ संस्कार मतलब उसकी वो प्रैक्टिस कर रही है, और वो एक कच्चा बिना उबाला हुआ पानी वो पीती है। मतलब एक तरफ तो वो अपने बच्चे को, अपने आप को वो कुछ अच्छी चीजों से प्रोग्राम कर रही है, बट उसका जो पुरुषार्थ है ये पूरा कट हो रहा है, बिकॉज द वाटर विच शी इज कंज्यूमिंग एंड द वे शी इज प्रोग्रामिंग हरसेल्फ एज वेल एज द बेबी इन हर वूम्ब, वो कोई अलग चीज से वो प्रभावित हो रहा है। तो आपको वो पानी को अचेत करना है, उसमें किसी और का जो चित्त मिला है, किसी और की चेतना जो उसके अंदर आई है, जो आपको दिखाई तो नहीं देती, बट व्हेन यू बॉइल द वाटर, व्हेन यू डिसमेंटल दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब आपने पानी को फिर से वो न्यूट्रल कर दिया। अब ना उसमें कुछ अच्छा है ना बुरा है,
अब आप जैसा चाहो वैसा उसको प्रोग्राम कर सकते हो, जैसा सॉफ्टवेयर डालना चाहो वैसा सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर लो। जैना का असली अर्थ शायद मुझे यही दिख रहा है, सूक्ष्माति सूक्ष्म जैना, मतलब सूक्ष्म अहिंसा। यहाँ अहिंसा का भी जो अर्थ है वो ये नहीं है कि हमें पानी के प्रति कोई मेहरबानी करनी है, पानी के जीव के प्रति हम कोई बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं। हमें अहिंसा का अर्थ है आपको स्वहिंसा को रोकना है। जो हम पानी के द्वारा प्रभावित होकर के हम जो अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हैं उससे बचना है। आपको मेहरबानी पानी पे नहीं खुद पे करनी है। ये जैना का असली अर्थ यही है। अब जब इसकी असली समझ नहीं है, सही समझ नहीं है, तब ये बड़ा कंफ्यूजिंग एंड एट अ टाइम इट साउंड्स वेरी इरिटेटिंग आल्सो। मतलब अगर सही समझ नहीं है तो लगता है कि भाई ये क्या, कच्चा पानी पक्का पानी, दोनों का ग्लास अलग अलग रखो, दोनों के नैपकिन अलग अलग रखो साफ करने का, ये सब बड़ा एनोइंग लगता है। बट ये कितना सूक्ष्म साइंस, कितनी गूढ़ विज्ञान, जिसको साइंटिस्ट भी पूरी तरह से तो समझ भी नहीं पाए। ये तो हम एक कोशिश कर रहे हैं डॉट कनेक्ट करने की, तो यहाँ पर वो लीड करके लेकर आए और भगवान ने अपने आत्मज्ञान से ये बात कितने एक सरल शब्दों में हमें बता दी कि भाई पानी एक जीवंत तत्व है, सूक्ष्माति सूक्ष्म अहिंसा और जैना का पालन करना है और सिर्फ अचेत पानी को ग्रहण करना है। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग ये आज का लेक्चर मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और अब इस विषय में कोई भी प्रश्न है, कोई भी चर्चा है, इसका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Excellent, विशाल भाई, रियली इम्प्रेसिव। आपने जिस तरह से इतने सारे डॉट्स कनेक्ट किए, लॉट ऑफ थिंग्स हैव बिकम क्लियर, नॉट एक्सट्रीमली क्लियर बट फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आई। आज तक कभी भी पानी के बारे में इतना सूक्ष्म तरीके से हमें सुनने को नहीं मिला। सो रियली गुड। Now we will open the floor for questions, thoughts, any views that anyone want to share. We will spend 5 minutes till 12:15 on questions, and then we will conclude the session. Anyone, if you want to ask any questions, please raise your hand, or you can put it in the chat box as well. Yeah, Vedanshi ji, I think you've raised your hand. If you want to go ahead, yeah, please unmute yourself and go ahead. Hello, Pranam. Thank you for the information that you gave. But आपने जो बोला कि वो पानी बॉईल करने के वक्त वो जो उसका हम लोग डिसमेंटल कर देते हैं, तो उसका जो अंदर जो ऑलरेडी बिहेवियर या जो भी मेमोरी आया है उसको डिसमेंटल कर देते हैं, लेकिन बॉईल करने के बाद हम वापस नई एनर्जी उसमें भर सकते हैं, नवकार बोल के या कुछ और विचार करके। एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये जो एक रिचुअल है ना, ये हमारे में ऑलरेडी प्रचलित है। एक हम देखिए, बहुत बार हमको कहा जाता है कि भाई आप मंत्रित पानी का प्रयोग करो, अभिमंत्रित पानी, चाहे जैसे वो भक्तामर की गाथा से, नवकार मंत्र से, या भाई गायत्री मंत्र से, या कोई भी तरीके से। सो देन वंस यू हैव इरेज्ड द मेमोरी, आप मान लीजिए ये एक हार्ड डिस्क है जिसमें बैड सेक्टर्स है, करप्ट हो चुकी है, आपने उसको फॉर्मेट कर दिया। अब आप उसमें नया डेटा जो डालना चाहो डाल सकते हो, क्योंकि जगह पूरी खाली हो गई। तो अब आप उसको आप जैसे चाहे वैसे प्रोग्राम करो। और इसी कारण तो हम सुबह नवकारशी करते हैं, फिर पानी मुंह में डालने के पहले हम 3 नवकार गिन करके पानी डालते हैं ना। मतलब वो रिचुअल के पीछे का साइंस आप समझिए, वो एग्जैक्टली वही चीज है। और अगले 5-6 घंटे तक हमारे में पानी भी ऐसा नहीं है कि एक बार पानी बॉईल कर दिया तो फॉरएवर वो मेमोरी चले गई। वो 6-7 घंटे में फिर से वो सराउंडिंग जो भी एनवायरनमेंट होगा वो पानी वो कैप्चर कर ही लेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं, बहुत बार हम कहते हैं कि भाई पानी अगर बॉईल करके भी पीना है तो वो 6-7 घंटे बाद वो प्रभाव भी चले जाता है, आपको रीबॉईल करना पड़ता है। सर लेकिन उसमें मतलब डिसमेंटल करने के बाद उसमें जीव तो चला ही जाता है ना वापस। नहीं, वो फिर से आप उसको जब ठंडा करते हो ना, तब उसके बीच का वो जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो मैंने आपको बताया था, वो फिर से वो अपना, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वो फिर से वो रिकंस्टिट्यूट होना शुरू हो जाता है। और वो कैसे फॉर्मेशन होगा, अगेन बेस्ड ऑन दैट सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उसकी जो वाइब्रेशन है, सराउंडिंग वाइब्रेशन, उसके हिसाब से फिर से वो होना शुरू हो जाएगा।
वेदांशी जी। थैंक यू। थैंक यू। मोना जी। हाँ जी, प्रणाम, जय जिनेंद्र। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम स्थानक वाले हैं तो जो राख मिला करके हम करते हैं Correct. अचित, हाँ, तो वो कैसा क्या है उसका सिस्टम? करेक्ट करेक्ट, आपने एकदम सही बताया। आई सॉरी यू रेज दिस क्वेश्चन, वेरी गुड। ये पॉइंट मैं बताना भूल गया। अचेत पानी की जो व्याख्या है उसमें फंडामेंटल जो चीज आपको करनी है, मतलब वो बॉईल करना ऐसा नहीं बोला किसी ने, आपको अचेत करना है। अब हाँ अचेत जी। करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको बॉईल करके ही करो। हाँ राख जो जो गाय के गोबर से जो निकली हुई जो राख है उसको आप जलाओ और जो राख पैदा होती है हाँ उसमें वो गुण है केमिकली कि वो हाँ पानी का जो वो अंदर का इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको वो डिसमेंटल कर सकती है। हाँ तो जी। हाँ जरूरी नहीं है कि आप बॉईल करो, आप उसको राख मिला करके भी उसको आप कर ही सकते हो। और बहुत से संप्रदाय में जैसे ये बात है कि भाई बॉईल ना करे, ताकि इवन बॉइलिंग में भी वो अग्निकाई जीव की हिंसा होती है, तो हाँ आप हाँ उसको राख मिला लीजिए। पर होता हाँ क्या है आज के हमारे जो अर्बन एनवायरनमेंट में, हाँ वो राख भी यहाँ आप कहाँ लेकर आओगे? गाय का गोबर, उसमें से बनी हुई राख हाँ हाँ। ओरिजिनल वो मिलती नहीं है, इसलिए चलो एटलीस्ट बॉईल तो हम कर ही लें। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है इस प्रकार की। अच्छा, और ये जैसे हम पानी ये ले रहे हैं तो ये कितने समय तक रहेगा राख का पानी अचित? देखिए ये अभी शास्त्रों में तो ऐसा कहा है, मेरे ख्याल से आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट कुछ 3 प्रहर या 6 प्रहर ऐसा कुछ तो है लगभग। घंटे के हिसाब से कहे तो 6 या 7 घंटे का है। अगर आपने सुबह सूर्योदय के समय पानी बॉईल किया है 7:30 बजे, तो लगभग 4 बजे तक आई थिंक वो रहता है। अगर आपको सूर्यास्त तक पानी पीना है तो आपको दोपहर के बाद फिर से वो बॉईल करना है, विच यू कैन हैव टिल सनसेट। 5-6 बजे तक आप उसको ले सकते हैं, उसका कुछ तो सर, टाइम पीरियड है। मैं उसकी अचित मतलब जो राख से अचित करते हैं उसकी बात कह हाँ रही हाँ हाँ, हूँ। अब आपने कैसे भी उसको अचित कर दिया, हाँ 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 आपने राख से किया या बॉईल करके किया, हाँ हाँ इवन हाँ यू नो आप पानी को शेक भी करते हो ना एकदम जोर से, हाँ हाँ या एकदम ऐसा एक मैकेनिकल फोर्स देकर के, हाँ 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 उससे भी वो उसका जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, इंटर हाँ मॉलिक्यूलर बॉन्ड, वो ब्रेक हाँ हो हाँ। जाता है टू अच्छा वो लार्ज एक्सटेंट। बट वो फुल अच्छा प्रूफ नहीं है, अच्छा मतलब अच्छा 100% आप नहीं बोल सकते। अच्छा। तो फुल प्रूफ है भाई, आइदर यू डू इट फिजिकली बाय बॉइलिंग थैंक और यू। केमिकली बाय इन्फ्यूजिंग दैट राख। तो हाँ दोनों में से किसी से भी आप करो, डजंट मैटर। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। क्या मैं आपसे पर्सनली कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे जो मैं आपसे बात कर हाँ हाँ, सकती हूँ आप क्या? कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल शेयर माय आपका नंबर, आपका और आप नंबर हमारे बताएं। ग्रुप में यहाँ किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते We'll हैं। take They will next connect question you. from Anil Kumar. हेलो विशाल भाई, वेरी गुड लेक्चर, वेरी Thank you, इंटरेस्टिंग। इसमें कई एस्पेक्ट आपने नए जोड़े हैं, मुझे अच्छा लगा। लेकिन एक चीज मैं हर किसी से कहता हूँ, जब भी आपकी इनिशियल स्लाइड में आपने जो दिखाया कि अच्छा बोलते हैं तो उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको एक्सपेरिमेंटली करके खुद ही देखना चाहिए, जिससे वी कैन गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ये कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन तो बहुत सारा मिलता है, नेट में भी मिलता है, आपने होम्योपैथिक का भी जिक्र किया, तो इसको आप थोड़ा प्रयास करके इसको आगे बढ़ाइए, कोई एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दीजिए, दैट विल गिव मोर इम्पैक्ट। बाकी सही के बात जो है। एस्पेक्ट आपने कहे हैं रियली इंटरेस्टिंग, और लास्ट में जो आपने कहा मेमोरी किस तरह से रहती है और किस तरह से मंत्र उच्चारित जो पानी है उसमें मेमोरी का एक्सप्लेनेशन आपने दिया, तो इस पर और वेट पड़ेगा। मैं खाली इतना मेरा सबमिशन था, क्वेश्चन नहीं था। बहुत अच्छा, थैंक यू सर, इंटरेस्टिंग। एकदम सही बात बताई। हमारे यहाँ पर हमारा जो एक रिसर्च बेस्ड अप्रोच है ना, वो यहाँ पर थोड़ा कम है। हमारे पास शास्त्रों में इतना ज्ञान उपलब्ध है, बट फिर भी इट इज मोस्टली अ फेथ बेस्ड नॉलेज। वो हमारी अपनी समझ से कुछ आया हुआ वो नहीं है, वो चीज की थोड़ी हमारे यहाँ कमी है, वो हमें करना चाहिए। आपकी बात में से मैं 100% अग्री करता हूँ। I'd Thank just you. like to add over here, Vishal, यस सर। कि हमारा जो जो पुद्गल का अभ्यास है उसमें परमात्मा ने, तीर्थंकर परमात्मा ने जो बात कही है वो ऐसा कहा गया है कि भाई हमारे जो पुद्गल होते हैं वो परमाणु होते हैं, या तो सूक्ष्म होते हैं या तो ग्रॉस होते हैं। और वहां एक कॉन्सेप्ट रखा गया है द्विस्पर्शी, चतुर्स्पर्शी और अष्टस्पर्शी।
अनफॉर्चुनेटली आज का जो विज्ञान है वो वही चीज को पहचान सकता है जो अष्टस्पर्शी है। जैसे हमारे जो कार्बन शरीर है वो चतुर्स्पर्शी है, हमारे जो परमाणु है वो द्विस्पर्शी है। आज हमारे पास कोई विज्ञान ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा संशोधन नहीं है, कोई साधन नहीं है जो ये द्विस्पर्शी और चतुर्स्पर्शी एलिमेंट को या तो परमाणु को समझ सके। एज लॉन्ग एज दिस विल नॉट हैपन, अवर रिसर्च, फिजिकल रिसर्च, बिकॉज अल्टीमेटली हमारी जो इंद्रिया है वो 8 स्पर्शी को ही स्पष्ट कर सकती है तो ग्रहण कर सकती है, लेकिन परमात्मा ने तो उससे भी जो द्विस्पर्शी और चतुस्पर्शी जो एलिमेंट्स है उसको स्पर्श किया है। तो मेरे मानने से लगता है कि अब थोड़ा और भी जो हमारा पुद्गलास्तिकाय का जो अभ्यास है उसको अगर इसके साथ जोड़े तो कुछ और चीज हम मालूम कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन डिस्कस दिस फर्दर पर्सनली ऑल्सो एंड देन वी Yes, ब्रिंग sir. इट ऑन द प्लेटफॉर्म। Yes, sir. Absolutely correct. Roma ji, nice to see you again. या जय जिनेंद्र। विशाल जी बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल लेक्चर था। एंड आजकल एक ये चलन हो गया एक्वागार्ड के पानी का, तो उसका भी मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। हमें पता है काफी सारे उसमें पानी तो खैर इसमें वेस्ट होता ही है, बट काफी सारे इसके दूसरी प्रॉपर्टीज भी कम हो जाती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, ये जो भी सो कॉल्ड वाटर फिल्टर, एक्वागार्ड, आरओ फिल्टर जिसके थ्रू पानी आता है, अब वो एक प्रकार का वो एक फिल्टर है, उसके अंदर एक फिल्टर कार्ट्रिज है। और अगर समझिए कि कहीं थोड़ा बहुत हार्ड वाटर अगर आता है, मान लीजिए जैसे वो बोरिंग का पानी है, तो कुछ हद तक वो उसका मिनरल कंटेंट, पीडीएस लेवल वो थोड़ा सा डाउन कर सकता है, वो भी उसकी बहुत ज्यादा क्षमता नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ में उसके अंदर एक जैसे यूवी लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट, तो वो पानी के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, वायरस, उसको वो किल कर डालती है। आपके घर में रहे आरओ प्लांट या जो भी एक्वागार्ड कुछ भी है, वो बस यहाँ तक ही इतना ही काम करता है, इससे ज्यादा नहीं। रादर वो फिल्ट्रेशन भी इतना मतलब इतना ठीक तरह से वो नहीं कर पाता, ना वो डिसइंफेक्शन भी इतना अच्छे से नहीं कर सकता। आप जब बॉईल करते हैं तब वो स्टेराइल तो होता ही है, उसके अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस है वो तो खत्म होते ही होते हैं, और वो अचेत भी हो जाता है। ये जो आज के जो आरओ प्लांट या जो भी एक्वागार्ड है, फिल्टर है, वो अचेत और सचेत का तो वहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, वो वाटर ट्रेवल्स वाया पाइपलाइन। आज हमारे घरों में हम कोई नदी या कुएं में जाकर के पानी भरते नहीं है, वो पाइपलाइन से आता है, तब वहाँ वो स्पाइरल मोशन और वो सारी चीजें वो है ही नहीं वहां पर, तो वो पानी में फिर वो बात कभी नहीं रहती। और यही एक कारण है, आप कभी भी एक्वागार्ड का पानी या ठंडा पानी आप कभी डायरेक्ट पियो और आप एक मटके का पानी पियो, यू फील मोर एक्चुअली हाइड्रेटेड व्हेन यू ड्रिंक दैट वाटर फ्रॉम द पॉट। अंदर से आपकी जो एक शरीर के अंदर हर एक सेल में जो आपको तरस आपकी जो है वो एक शांत होनी चाहिए, वो आपको ये पानी से कभी नहीं मिटती। आपको लगता है और पानी पीऊं और पीऊं और पीऊं। आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो, व्हेन यू आर सो थर्स्टी, बट उससे वो कभी नहीं होता। नहीं, बट वी फिल एक्वागार्ड का पानी हम अगर मटके में भरे, आई नो हाँ, वो वाले तो आएगा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई और चॉइस ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट। या नहीं, आप एटलीस्ट उसको बॉईल कर लीजिए ना। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ, अगर हम खाली एक सिंपल वैज्ञानिक तरीका देखें, बॉईल करने से इतना हमें समझ में आता है कि यस, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज होल्डिंग दैट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इट गेट्स डिसमेंटल्ड। साइंस में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये प्रक्रिया को कहते हैं डीनेचरेशन। आपके जो डीएनए हेलिक्स होते हैं ना, स्पाइरल, आपको दोनों को सेपरेट करना है, तो वहां पे भी दोनों को जोड़ने वाला बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये एक 12th स्टैंडर्ड के साइंस के स्टूडेंट को आप पूछेंगे, दे कैन इजीली एक्सप्लेन। तो वही चीज आप बॉईल करते हैं, वो वाटर गेट्स डीनेचर्ड, और उस मतलब आपने उस पे से वो प्रभाव हटा दिया, फिर आप उसको एक सादे मटके में आप स्टोर कर लीजिए और पी लीजिए, सिंपल। थैंक्स। थैंक यू।
Thank you. I think with this, we can go towards conclusion. Ajit Bhai, I would request you to come forward and give concluding remarks. It was an excellent presentation, brother, and the insights which you gave about water, जो आपने बताया हर चीज के बारे में, water structures से लेके life force से water memory, एक नई दिशा दिख गई है पानी को कैसे अपन किस स्वरूप में अपन जो देखते थे उस स्वरूप को एक अलग दिशा दिख गई है पानी को देखने की, और उसके मतलब किस तरीके से आपने जो बताया उसके अंदर मेमोरी रिटेन होती है, एंड हम कैसे पानी को और जो जैन तरीके, हाँ उससे बताया, तो वो एक बड़ा ही अलग ही परसेप्शन था जो अभी तक सबके उसमें था. We really thank you, brother, for presenting, and will be our next lecture will be on the 6th of Feb, the first Sunday of February. And thank you everybody for joining us on the Applied Jainism platform today. Thank you. Thanks, Ajit ji. Thank you, Vishal Bhai, so much. And thank you everyone for joining. As Dimple explained at the beginning, this is a two-part series. This was the first lecture. I mean, world की सबसे बड़ी समस्या है water scarcity, water pollution. तो water pollution को समझने से पहले water को समझना जरूरी था. तो आज का हमारा lecture part 1 of the series. The next lecture will be a continuation of this. कि pollution कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से कहाँ हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ हो रहा है, कैसे रोके. So please do join. We look forward to your participation. यदि आप है तो हम सेशन आपके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए भी कर रहे हैं, हमें भी बहुत सारी जानकारी मिल रही है और आपको भी मिल रही है. So please do join and enjoy rest of your day. Thank you so much. Sangeeta ji also request them that they should contact their friends who may be interested in this kind of topic and see that they also join. आज मैं मानता हूँ 50 लोग last minute तक हमारे साथ रहे हैं. That means these are the people who are really and seriously interested in this kind of knowledge. तो अगर हम उसको कहें कि आपके संपर्क पे जो भी लोग हैं जिसको ये knowledge के अंदर interest है उसको please जोड़िए हमारे साथ. And whoever is interested, please join our WhatsApp group as well. We are continuously posting on these topics and similar topics as well. So we would love to have your thoughts and participation there as well. The link is pasted in the common chat folder. And अगर आप नहीं join कर सकते हैं तो हम में से किसी को भी contact करके आपका number दीजिए तो we'll add you to the group. Excellent power presentation. Spending your Sunday morning. Scientific paper. Excellent. Thank you. I'm Dr. Parekh myself, and I got a lot of new information, which being a doctor also, I did not know, to be honest. You know, water has a great energy and we have to exploit that energy as far as the applied Jainism is concerned. Congratulations and good luck. Thank you. Thank you, sir. Thank you all for the excellent feedback. And as Bipin sir said, our initiative is to include as many people as possible on Applied Jainism platform and spread the knowledge. The whole objective is to how we can protect the environment, how we can improve our life and life of all the living beings by applying our traditional principles. So please do share information about this platform with your friends and family. Thank you so much. It's a very religion agnostic platform. So it's all about environment and humanity and, you know, so it's very religion agnostic. So please do encourage even other folks to join. Dilip Bhai, thank you so much for being with us till the last moment. Any words from you, Dilip Bhai, before we conclude? Okay, thank you. See you all again next month. Thank you. Thanks. With this, we'll conclude the program. Thank you.